get ready to certificate course of your 3 weeks course of the certificate courses for you. Ready to मेच्योरिटी एनालिसिस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपका नेक्स्ट कंटेंट है इसमें आपके कोर्स में। मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है और कैसे आप पता लगाएं कि फ्रूट मेरा पूरा हार्वेस्ट के योग्य हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये देखेंगे हर फ्रूट का मैच्योरिटी इंडेक्स अलग है और दे हैव टू द डिफरेंट पैरामीटर्स टू चेक फ्रूट दे आर हार्वेस्टेड और नॉट फुली मेच्योर और नॉट फुली मेच्योर, ओके। So that is to studying in this lecture maturity indices of the fruit and vegetables. अब पहले अगर हार्वेस्ट कर लेंगे तो they have to the bad effect on the post harvest and to the late करेंगे तो also have to the bad effect and have to the decrease the storage life of the fruit. So in this lecture we have to do studies इस one। तो मैं एक बार फिर एडमिट कर देता हूँ सबको और ले आता हूँ सबको क्लास पे। तो इन दिस लेक्चर मैच्योरिटी इंडिसेस में हम पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन है फ्रूट मैच्योरिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रूट मैच्योरेशन इंडिसेस ऑफ द ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या है, ठीक है। एंड दे हैव टू अगेन टू द चेक दिस इज बी रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, ओके। तो admit view all for admit and to the share they have to recorded भी they are start, okay। so let's do start। तो इंट्रोडक्शन है फूड मैच्योरिटी एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसका, हाउ कैन यू जस्ट टू हैव टू द फूड इज फुली मैच्योर और फूड मैच्योरिटी इंडिसेस ऑन द ट्रॉपिकल फूड्स क्या है, रिव्यू लिटरेचर क्या है इसके पीछे, कंक्लूजन क्या है और फ्यूचर प्लान्स फॉर हाउ टू मीट the post harvest of the fruits and vegetables। So they have to some points they are discussed in this lecture, okay। So first of all to what is the introduction of the maturity indices। So you know very well all the foods including the tropical subtropical and the temperate one, so that is to the food that grown in the hot and humid region and the tropic of the cancer fruit, tropic of the capricorn। So mostly they have to the tropical zone in between the on the outside tropic of Cancer, tropic of Capricorn, covering most of the tropical areas of the Asia, Africa, Central America, South America, and that is Caribbean and Oceania. That Oceania have to the in between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। So fruits such as banana have, mango have, papaya have to be have been used in the staple food in Asian, African, and Asia Pacific countries. So that is to the need for the harvest on the right time, okay। So due to the increasing the demand over the year of some of the popular food type gradually to develop from the substances relevant to the onset of the game generate the income। So due to have to the suppose that is the mango. Mango is the availability in the June to June, July, August, September. They have to harvest on that fruit and they take the enjoy of the fruit. If you want to that they take the enjoy taste of the fruit on the off season to need that to the food preservation or post harvest management of the fruits. Okay? So that is to what is the importance of physiological maturity indices to have to the it is to estimate 20 to 30% of the fresh horticulture product they are lost due to have to the lack of facility available in India, to have lack of the transportation, lack of the storage and lack of the right maturity harvest and to lack of the preservation, okay। So the need for the storage to shape your 20 to 30% of the food to that it would decay due to have to the lack of facilities. So they are converted into the forms to the storage in the as a form of the preservation with the help of the preservation of the fruits. Okay, to need for importation of the physiological maturity indices. So you know they have to the zone here to the tropic of Cancer, tropic of Capricorn in here to that tropical zone in the all over the world. So tropical fruit they are grown on that area. ठीक है, तो दैट इज आपका मैंगो है, गुआवा है, बनाना है, दे हैव टू सपोटा है, ठीक है, लीची है, दे हैव टू ग्रो ऑन दैट एरियाज। तो हैव टू द मोस्टली ऑफ द fruit have to mostly of the areas have to the lack of facilities of the cold storage। So you know very well to microbial activities
check if the foods are stored in the less temperature, or they are preserved by the potassium metabisulfite or sodium metabisulfite. You have to check the microbial activity or the molds activities. Okay, so that to change the form of the fruit and to take the enjoy. जैसे real juice है, mango मजा है, they are available in the off season to the fruit. They have to change the form of the fruit and to store in the preserved bottles or in the cans. Okay. So you have to what is the fruit maturity? It is to the stage of full development of tissue. Fruits only after it will be ripened normally. So fruit है, they have to mature fruit. They have to receive the regular supply of the food material from the plant. They have to एक पीक आता है, इसके बाद प्लांट से वो मटेरियल लेना बंद कर देते हैं. दैट इज द राइट स्टेज ऑफ द मेच्योरिटी. और green color convert into the light yellow color, or they have to the right stage of the maturity. Secondly, have to the that is THS, total soluble solids. Or third is they have to the increase the ethylene percentage from the fruits. Or the respiration rate also the increase after the full mature fruits. Okay, so full mature fruit के बाद that is to going on the ripen condition. और ripen condition they have to go on to the senescent condition. The fruit mature पहले first of all development of the fruit, after then to full mature of the fruit, after then to ripen and to convert into the senescence and aging. ठीक है, senescence means पकने के बाद क्या होता है, फिर उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाता है और इथाइलिन परसेंटेज बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन परसेंट बढ़ जाता है. तो क्या है, पकने से पहले जो आपका स्टार्च है कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द डिग्रेडेशन एंड अल्कोहल एंड प्रोडक्ट गोइंग ऑन द decay condition. So that is the parameters of the food maturity, that is fruit mature and ripen and aging and senescence. Okay, so that is to maturity in the full ripe stage, full mature stage. After that to going on the senescence. So maturity, how can maturity do have? That is a stage of the full development of the tissue of the fruit, only after which Excuse will me, sir. ripen normally. Okay. So the mature at the harvest, the most important factor Again, that is please to continue. determine the storage life and final food quality. So immature fruit are more subjected to the shriveling and mechanical damage and are to inferior flavor and quality than they are ripe. Okay. So overripe fruits are likely to become shock, which is inside the flavor soon after the harvest. Excuse me, sir. हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, मैच्योर या रैपनिंग प्रोसेस चालू हो जाती है. टू हैव टू डिस्टेंस फ्रॉम द plant to have the art material they are stopped to come in the fruits. Okay, so the fruits pick either to the early or to the late in their season, or are more susceptible to the post harvest physiological changes than to the fruit picked at the proper maturity. Yeah, okay. So that is to what is the merit of the level of maturity. That is to the selection of storage methods. Secondary to estimation of the shelf life. Or third is to selection of processing operations of the value addition. And next is to the post harvest handling system handler shipped long distance. Okay, or the nutrition quality and productivity. They are the merits of the level of the maturity. मेच्योरिटी का मतलब समझ गए होंगे. फुल मेच्योर स्टेज पर हम हार्वेस्ट करें तो हैव टू द स्टार्ट द मेटाबॉलिक फंक्शंस टू increase the respiration and ethylene concentration to inside of the fruit and to starch convert into the carbohydrates. Okay, इसलिए आपने देखा होगा जैसे आम है, मैंगो के केस में मैंगो पहले कच्चा होता है, दैट इज एस्ट्रिक इन नेचर. तो दैट टू जैसे ही आप हार्वेस्ट करेंगे राइट स्टेज पर, आफ्टर देन टू द 90 to 90 days after the flowering, to have to they have to the convert starch into the carbohydrate with the help of ethylene. तो दैट इज टू कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द परसेंट, स्वीटनेस बढ़ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट. तो various fruit maturity indices are that is to number of days from the fruit set. एक तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारी फ्लावरिंग के कितने दिन बाद ये अपना इसका फुल मेच्योरिटी आएगा. तो दैट द पैरामीटर को नोट करके लेंगे, जैसे 60 डेज, 65 डेज, 70 डेज, 80 डेज और 90 डेज आफ्टर द फ्लावरिंग टू द फुल नेचर ऑफ द फ्रूट. हेलो, हाँ हाँ सर, क्लास चल रही है तो अभी क्लास के बाद आ जाता हूँ सर.
हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आप उधर ही पहुँचे क्या? अच्छा ठीक है सर, तो और डी सर का फ़ोन था। चल मैं ट्रैक्टर ड्राइवर आया हुआ है तो उसको खुद चेक करना है। चलिए, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द फ्रूट सेट, कितने दिन बाद फुल मैच्योरिटी आती है वो हम उसके रिकॉर्ड में रहता है। विजुअल इंडिकेटर्स कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैंगो में ग्रीन कलर है, लाइट येलो कलर में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे पीलापन आएगा, दैट इज टू राइट स्टेज ऑफ। और लाइट ग्रीननेस आ जाए तब भी दैट इज द विजुअल इंडिकेटर्स टू द राइट स्टेज ऑफ द मेच्योरिटी। मेच्योर पूरा का पूरा मेच्योर हुआ कि नहीं, पहले हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसका प्रॉपर, आपने देखा होगा जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उसमें सर श्रिंकेज आ प्लीज जाता है, स्टूडेंट्स की ज्वाइन सिकुड़ रिक्वेस्ट जाते हैं, एक्सेप्ट पक तो कर लो। जाते हैं लेकिन सिकुड़ जाते, टेस्ट नहीं आता है उसमें, उतना शुगर नहीं बनता है, फ्लेवर नहीं आता है। साइज ऑफ द फ्रूट, प्रॉपर साइज, उसका पैरामीटर प्रॉपर साइज में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सर इस सुन नहीं आधार रहा। पर हेलो सर। फ्रूट पका है, फ्रूट फुल सर मेच्योरिटी प्लीज में है या नहीं। रिक्वेस्ट शेप ऑफ एक्सेप्ट द कर लो फ्रूट, सर। प्रॉपर शेप क्या है, कलर ऑफ द फ्रूट, कलर के आधार पर अपीयरेंस, एक्सटर्नल बाहर सर से को देखा सुन तो नहीं उसको रहा। पता लगाएंगे कि दैट इज टू फुल मेच्योर। टेक्सचर, भाइयों ना सुने सिक्योरिटी, सारे जो ठग लिए। मीटर होता है इसका जूस को, इसके शेप को निकाल के डालेंगे तो पूरा मेच्योरिटी। स्टार्च कंटेंट कितना है, सोल्यूबल सॉलिड्स कितना है, मैसेज शुगर भी नहीं एसिड पढ़ रहे। रेशियो क्या है। On the basis of following parameters, we have to learn for about this fruit is the full mature or non mature. That's called the maturity indices. उसको हम maturity indices कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो, इनिशियल स्टेज में फ्रूट डेवलप हुआ, ठीक है। पहले फ्रूट यस फर्टिलाइजेशन सर। हुआ, इनिशियल स्टेज में पी स्टेज में आया, फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर डेथ हो गया, ठीक है ना। कोई सर को यस कॉल सर। करके बोल दो। इनिशियल स्टेज में आपका फ्रूट डेवलप होते होते फुल मेच्योरिटी में आया। मैच्योरेशन में दैट इज टू मैच्योरिटी इंडिसेस, अरे यहाँ पर विक्रम पता नहीं लगा सुन के रहे मेरे उसको भाई। हार्वेस्ट कर लिया जाए, मैसेज भी ठीक नहीं है। पढ़ रहे। इसके बाद उसको रखेंगे तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनसाइड ऑफ द fruits, and after that to increase the ethylene concentration, and after the fruit ripen and to going on the senescence, and after to have to death। और अगर एक समय के बाद वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू हैव टू फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मधु ने कॉल किया, सुन रहा सारे। हेलो, हेलो, भाई समझ के बाद हेलो। तो ये आपका इस तरह से मैच्योरेशन हो गया। फिर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में आप अपीयरेंस से देख लेते हैं, उसके पैरामीटर्स को पता लगा के देख लेते हैं, दैट इज अ मैच्योर और नॉन मैच्योर। आफ्टर देन स्टार्ट द राइपनिंग एंड स्टार्च कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। कैसे कन्वर्ट होगा? इथाइलिन जनरेट होगा, ड्यू टू हैव टू रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। तो दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, फिर आपको क्या मालूम हुआ है, कॉल क्लाइमेटिक करके? फ्रूट और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। हो गई क्लाइमेटिक सबकी फ्रूट होते एक्सेप्ट। हैं, उनमें इथाइलिन रीजनरेट होता है इनसाइड ऑफ द फ्रूट एंड टू द स्टार्च कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नॉन क्लाइमेटिक एक भी में ऐड नहीं हुआ। नहीं बनता है, जो टू काम टू इंक्रीज द रेस्पिरेशन। बोला तो था जैसे सर को ग्रेप है, कॉल ग्रेप करके। आपको हार्वेस्ट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में उनको उसका सुना ही नहीं तेरी बात। रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होता है, टू हैव टू द ओनली कॉल की थी मैंने, कॉल की थी सर। शुगर ही सुना ही नहीं उनको। इसका मतलब होता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इसमें मैंने अच्छा एल्कोहल अच्छा में, बोला था। और टू द कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, ठीक है। और एक समय के बाद, राइपन के बाद वो कन्वर्ट क्या हो जाता है, गोइंग ऑन द सेनेसेंस कंडीशन। और आफ्टर आफ्टर दैन टू एंड ऑफ द प्रोडक्ट हैव टू दे हैव टू द डेथ, पूरा का पूरा फूड ये है गोइंग ऑन द डिकम्पोज कंडीशन, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज टू द डेथ हैव टू डेवलप द डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज ग्रोथ, मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, राइपनिंग एंड सेनेसेंस, दे हैव टू कम आफ्टर द प्रोसेसिंग, ओके। So types of maturity में they have to three type of maturity, तीन तरह की maturity हो सकती है। फिजियोलॉजिकल maturity हो सकती है, कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर maturity हो सकती है, और हार्वेस्टिंग maturity हो सकती है। तो करीब अकॉर्डिंग टू द हॉर्टिकल्चर they have to classify the maturity on the three bases: फिजियोलॉजिकल, कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर maturity, और हार्वेस्टिंग maturity, ठीक है। So that is to physiological maturity क्या है? What is the physiological maturity? It is the stage when the fruit is capable of the further development or ripening when it is harvested. ओके, क्या है? एक स्टेज होती है फ्रूट की जिस समय फ्रूट क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है और रैपनिंग कंडीशन में जाने को तैयार होता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। रेडी फॉर ईटिंग और प्रोसेसिंग, दैट इज टू फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। शॉर्ट में कह सकते हैं रेडी फॉर ईटिंग एंड प्रोसेसिंग। आप हार्वेस्ट करके उसके बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है।
In a physiological sense, maturity refers to the attainment of the final stage of biological functions by plant parts or the whole. एक स्टेज के बाद प्लांट के बायोलॉजिकल फंक्शंस बंद हो जाते हैं, वो स्टेज फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी कहलाती है, ठीक है ना। और इट इज टू स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, इट इज टू मैक्सिमम साइज एंड ग्रोथ। और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट फ्रूट का हो जाता है मैक्सिमम एक समय के बाद, और डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट का, लास्ट एंड प्रोसेस होती है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेच्योरिटी। और क्या होता है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी इज टू जजेस ऑफ द मेजर बाय द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मनेस, कलर, साइज, शेप एंड बायोकेमिकल conservation of the starch or carbohydrate and sugar acid ratio. They have to all two parameters to seen on the physical appearance or by the instrument. Okay, it is always to followed by the senescence. इसके बाद senescence शुरू हो जाता है। तो that's called the physiological maturity। ठीक है, क्या है capable the food development, full development of the food on the basis of appearance। ठीक है, that is the physiological maturity। Horticulture maturity क्या है? That is to stage of development when plant or plant part process to prerequisite to the utilization by consumer for particular purposes. ठीक है, it is to stage of the food in which the consumers want to the food and required to the market। वो स्टेज जहाँ पर कंज्यूमर उसको यूज करने के लिए मांग लेता है। जैसे अचार बनाना है तो फुल मेच्योरिटी में, दैट इज द हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी के आधार पर फुल मेच्योर कंडीशन मिलेंगे। ठीक है, और द हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी फूड एंड वेजिटेबल डिपेंड अपॉन द पर्पसेस ऑफ विच इट इज टू हार्वेस्ट। और ये भी डिपेंड करता है वो किस उद्देश्य से लिया जा रहा है। ठीक है, it is a stage appearance at any time between the development and growth of any plant upon the fruit। वो stage appearance की टाइम जिसमें वो फुल डेवलप हो। ठीक है, it can be that is predicated by the using the different terminology like the premature, mature and over mature। किसी भी फ्रूट को तीन कंडीशन में बांट सकते हो। तो जैसे मतलब मेच्योरिटी के पहले का समय, मेच्योरिटी के बाद का समय। तो प्री मेच्योर, मेच्योर एंड ओवर मेच्योर। ओवर मेच्योर मीन दैट इज टू रैपिड। ओवर मेच्योर हो जाएगा तो पक जाएगा, और पकने के बाद किस में जाता है? सेनेसेंस में जाता है, यानी सड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो एजिंग खत्म हो जाएगा। देयर इज नो नेसेसरी फॉर सेनेसेंस, जिसमें सेनेसेंस की जरूरत नहीं है। दैट इज टू राइट स्टेज ऑफ द हार्वेस्ट, दैट इज टू हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी। ये हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी हो गया। अच्छा, हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी में क्या होता है? इट इज मे बी डिफाइंड एज टू द टर्म ऑफ द फिजिकल मेच्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी। इट इज टू स्टेज दैट इज अलाउड टू फ्रूट for harvest, allowed to food for use। ठीक है, vegetable it is to peak condition when it is reached to consumers and develop acceptable flavor and or appearance or the that is to having the adequate shelf life। वह कंडीशन जिसके बाद कंज्यूमर के लिए अलाउ हो जाता है कि दैट इज टू यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज अ हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी। यानी एक समय जिस पे हमको हार्वेस्ट करना है, तोड़ना है, टू ऑन द बेसिस ऑफ फुल डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, दैट इज टू हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी। हार्वेस्ट करने के बाद क्या करेंगे आप उसको? या तो आप कैल्शियम कार्बाइड लगाएंगे पकाने के लिए, या डिफरेंट पिकल्स या बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो एक स्टेज जहाँ पर हम इसको हार्वेस्ट करना है, दैट इज टू हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी। ठीक है, तो तीनों चीजें है एक ही, बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड अपीयरेंस दे हैव टू द डिफरेंट वे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद अपने आप ही इथाइलिन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। द एनहांसमेंट ऑफ द इथाइलिन आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। पूरा का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद, फुल मैच्योरिटी के बाद उसमें क्या होगा? फिर पकना शुरू होता है। स्टेज इमेच्योर, मैच्योर एंड ओवर मैच्योर। ओवर मैच्योर दैट टू regenerate the ethylene inside of the fruits and to the function of starch convert to the कार्बोहाइड्रेट। उसका फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को पुश करता है कि आप उसमें कन्वर्ट हुई है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के कन्वर्ट टू द carbohydrate। The food becomes soft, it is to ripen due to the breakdown of the insoluble protopectins and to the formation of the soluble proteins। Okay, so there is to इंक्रीमेंट इन द टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। टोटल TSS बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। दे हैव टू डिफरेंट बायोकेमिकल कन्वर्सेशन in the food, that is to formation of the amino acid or volatile or flavor or compound, they have to all have to develop after the maturity and over maturity में जाते हैं। जैसे रैपिन की तरफ जाते हैं, they have to metabolic process फास्ट होता है, इथाइलिन जनरेट होता है, तो जो हमारे इनसोल्युबल फॉर्म में स्टार्च होता है कन्वर्ट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट उसमें बदल जाता है, जैसे शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, और दे हैव टू कन्वर्सेशन ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस। ओके,
and the ripening stage of fruit is involved to the physiological and physical and biochemical changes in increase the size, weight, composition of sugar, increase the rate of respiration and decrease the chlorophyll content. जैसे जैसे पकता जाएगा क्लोरोफिल दिखने लगा है, आपको जानते हो ना, जैसे हरे से कैसे कन्वर्ट होगा, पीले कलर में आएगा, लाल। तो ये कलर जो डेवलप होते हैं दे टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट में आपका कैरिकाजेंथिन हो सकता है, आपका लाइकोपीन हो सकता है, ठीक है, एंथोसाइनिन हो सकता है। तो ये दे आर टू डेवलप थ्रू ड्यूरिंग द राइपनिंग। राइपनिंग प्रोसेस में कलर बनते हैं। क्लोरोफिल जो होता है दे आर टू द डिक्रीज, क्लोरोफिल कम हो जाता है, ठीक है। Softening of the fruit, they are also the parameter of the ripening to hydraulic conversion of the storage material in fruits and the changes the pigment, aroma, consistency and flavor associated with the ripening. बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, रिक्वेस्ट हाँ हाँ हाँ, वो कर रहा हूँ बार बार, एक साथ नहीं ज्वाइन करते ना, एक साथ नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, अभी कोई नहीं है इनका ना, अभी मैंने कर लिया है। देखो यहाँ पर कोई और नहीं आया हुआ है, कोई नहीं है, आएगा तो यहाँ पर आ जाता, किसी का भी होगा तो आ जाएगा। अभी कोई नहीं आया हुआ, आएगा तो मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ सर हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी रिक्वेस्ट। May be have to hydrolyze, that is to forming soluble pectins consuming the softening of the food. Okay, so the loss of chlorophyll and appearance of the carotenoids. Carotenoids also they increase after the disappear of the chlorophyll. Chlorophyll हटेगा तो carotenoid डेवलप होगा, ठीक है ना। कोई क्या डेवलप होगा, कैरिकाजेंथिन डेवलप होगा, पिगमेंट्स डेवलप होंगे, एंथोसाइनिन डेवलप होगा। दे हैव टू डेवलप अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आफ्टर द राइपनिंग। तो क्लोरोफिल हटने के बाद अलग अलग तरीके से फ्रूट में पिगमेंट्स डेवलप होते हैं और वो फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस कह देते हैं पक गया है, ठीक है ना। कैसे किस आधार पर कह देते हैं कि उसमें कलर दूसरे आ गए हैं, क्लोरोफिल हट गया है। तो ग्रीन कंडीशन दे हैव टू shown that the fruit is to mature or immature, okay, and to they have convert into the green color to the light yellow color, that is to ripen, okay। तो इंक्रीजिंग इन द कैरोटिनॉइड दैट इज टू पिगमेंटेशन होता है एंड ड्यूरिंग द राइपनिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इथाइलिन जनरेट होती है रेस्पिरेशन में एंड सडन दैट इज अपसर्ज ऑफ द रेस्पिरेशन नॉन एज टू क्लाइमेटिक राइज। तो बताया था आपको क्लाइमेटिक फ्रूट में दैट इज टू इंक्रीज द रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द इथाइलिन जनरेशन। फ्रूट मैच्योरिटी में इमेच्योर फ्रूट क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी एंड राइप इज द मोर ससेप्टेबल टू द श्रिवलिंग एंड फिजिकल डैमेज। जैसे इमेच्योर फ्रूट होते हैं, अगर उनको हम हार्वेस्ट करने के बाद श्रिवलिंग हो जाएगा पकते समय। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको मालूम है, जैसे आम वगैरह जब कच्चे आम होते हैं ना उन्हें पाल में लगा देते हैं तो उनको पक तो जाते हैं, टेस्ट उतना नहीं आता है, फ्लेवर नहीं आता है, वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंकेज आ जाता है इमेच्योर फ्रूट में। Mature fruit that is a good quality, ripe and that is logistic post harvest life and potential। ये आपका फुल मैच्योर फ्रूट है, उसमें आप कैल्शियम कार्बाइड किसी उसमें भूसे वगैरह में भी आप डाल देंगे तो उनमें एक फ्लेवर, एक एरोमा आएगा दैट टू फुल मैच्योर। इसके बाद क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो जाता है प्लांट की और दे हैव टू इंक्रीज द पोस्ट हार्वेस्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। जो केमिकल चेंजेस अंदर होते हैं इनमें इथाइलिन जनरेट होता है और वो इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट कर देता है, यानी स्टार्च को कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ओवर मैच्योर में दे हैव टू सॉफ्ट इन द मोर ससेप्टेबल टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ओवर मैच्योर में। सॉफ्ट हो जाए, ज्यादा पका होगा दैट इज सॉफ्ट इनटू मोर ससेप्टेबल टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। Sir, students are sending request again. So that is type of harvested indices sign। indices means sign, मतलब नमूना। साइन के जो अंदर सिंगल ये जजिंग बोल सकते हो, टू जज द मैच्योरिटी ऑफ टू स्किन कलर के आधार पर, साइज के आधार पर, परसिस्टेंस ऑफ द स्टाइल, पोर्शन, ड्राइंग ऑफ द आउटर लीफ। पत्तियां सूखने लग जाती हैं, जैसे केला के केस में जब दाग पूरी डेवलप हो जाएगी तो पत्तियां सूख जाएंगी, ठीक है। ड्राइंग द होल प्लांट बॉडी और चेंजेस इन द स्मेल, फ्लेवर, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द राइप फ्रूट। और या फिर ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप टूट के गिर जाता है। विजुअल मीन्स दे हैव टू क्लियर टू शाइन द फ्रूट इज फुली मैच्योर, ओके। फिजिकल में इसमें क्या करेंगे, फर्मनेस के आधार पर, उसमें फर्मनेस उसमें ज़्यादा फुल मैच्योर होगा तो खूब डेवलप होगा, एक्स्ट्रा साइज का होगा और फर्मनेस ज़्यादा होगा। इजी सेपरेशन और एब्सेशन लेयर बन जाता है, ये फुल मैच्योर होगा तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लांट से इजीली टूट जाएगा।
स्पेसिफिक ग्रेटी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं और वेट ऑफ द फ्रूट के आधार पर हम पता लगा सकते हैं दैट इज मेच्योर और इमेच्योर। ओके, जो इमेच्योर फ्रूट होगा उसमें तोड़ने में भी आपको प्रेशर देना पड़ेगा। जो फुल मैच्योरिटी होगा अपने आप ही जरा से सारे टूट जाएगा क्योंकि उसमें एब्सेशन लेयर बन जाता है फ्रूट स्टार्ट में, ठीक है ना। बायोकेमिकल चेंजेस बायोकेमिकल एनालिसिस में टीएसएस के आधार पर जो अपना रिफ्रैक्टोमीटर में उसका जूस डालेंगे तो पता चल जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर कितना है इसका मैच्योरिटी कितनी है। स्टार्च एसिड रेशियो के आधार पर शुगर रेशियो कितना है, इन रेशियो के आधार पर पता लगा सकते हैं। कंप्यूटेशन पे दिनों के आधार पर है कि हाउ मेनी डेज और हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द फ्रूट सेट टिल मैच्योरिटी, कितने दिन हो गए, जैसे 90, 60 दिन, 70, हर फ्रूट का अलग अलग मैच्योरिटी डेट है, इतने दिन बाद ये मैच्योर हो जाएगा और इतने बाद ये गिर जाएगा, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल मेथड्स में रेस्पिरेशन रेट है, इंटरनल एथाइलिन इवैल्यूएशन है, इसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है ना, उन्होंने अपना नाम ऐड नहीं किया इसलिए उनके नाम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नाम आ जाएंगे तो हो जाएगा। सारे बच्चे जो बच्चे पोस्ट हार्वेस्ट में अपना नाम लिखाना है तो पहले तो नाम एंट्री करें ना, तभी तो नाम यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा ना। ये आप देख रहे हो पेनेटोमीटर है जिसके आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि वो मैच्योर हुआ कि नहीं। वो हाथ में लिया है और पेनेटोमीटर लगा के उसकी रीडिंग ले रहा है। रिफ्रैक्टोमीटर देख रहे हो, इसके उस पर हम उसके जूस को निकाल के डालेंगे तो वो रीडिंग बताएगा कितने उसमें ब्रिक्स रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर टू नो फॉर अबाउट इट्स फर्मनेस, तो उसकी फर्मनेस और टीएसएस पता लगा लेते हैं, ठीक है। पेनेटोमीटर से फर्मनेस पता चलती है और रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ द मैच्योरिटी फॉर हार्वेस्ट फ्रूट, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। जैसे फिजिकल में मैंगो के केस में देते हैं, ओलिव ग्रीन कलर का होता है विद क्लियर लेंटिशल्स, बहुत क्लियर दिखाई देते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। शोल्डर डेवलप्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से 1.02 होती है। डेज फ्रॉम द फ्रूट से 90 से 100 दिन के बीच में फ्रूट पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है। टीएसएस 12 से 15 के बीच में होगा तो इट मीन्स दैट टू फुल मैच्योर ऑफ द मैंगो फ्रूट। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये उससे हम आधार पर पता लगा लेते हैं। बनाना के केस में स्किन कलर के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि स्किन ग्रीन कलर से लाइट येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राइंग ऑफ द लीफ, उसके पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं ऑफ द प्लांट। एंड ब्रिटलनेस ऑफ द फ्लोरल एंड्स, फ्लोरल एंड जो होता है नीचे जो उसका फ्लोरल स्पेडेक्स होता है वो सूखने लगता है लास्ट का। एंगुलरिटी ऑफ द फ्रूट दैट इज राउंडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो एंगुलर आपने देखा, जितना इमेच्योर होगा उतने ज़्यादा एंगल्स होंगे, ठीक है। जैसे जैसे पकता जाएगा तो उसमें राउंडिश सरफेस आती जाती है। डेज फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। और स्किन पल्प रेशियो में 1.20 से 1.40 के बीच में, और एसिड कंटेंट 0.25% में इसमें हो जाता है, ठीक है। पपाया में येलो पैचेस और स्टेक्स आ जाते हैं पपाया में। टीएसएस 7 से 11% तक टीएसएस हो जाता है और सॉल्युबल सॉलिड्स 11.5% होते हैं। दैट टू नो फॉर अबाउट। दूसरा पपीता में ये भी पता लगा लेते हैं, जैसे मैच्योर हो गया, फुल मैच्योरिटी क्या होता है, जो लेटेक्स होता है वो कम हो जाता है। तो उसमें जरा सा इंसीजर करेंगे तो क्या उसमें दूध की जगह पानी निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज फुली राइप, वो पक गया है, ठीक है। इमेच्योर में हम पेपेन के लिए लेटेक्स निकालते हैं ना, पेपेन कलेक्शन के लिए, तो जितना कच्चा होता है उतना ही ज़्यादा लेटेक्स निकलता है। लेकिन जैसे ही ये फुल मैच्योरिटी पे आएगा तो लेटेक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो दूध की जगह पानी से निकलने लग जाएगा येलोइश कलर का। तो समझ लो हमारा फ्रूट पूरा का पूरा मैच्योर हो गया। सपोटा के केस में स्किन कलर, सपोटा आपने खाया होगा, स्किन कलर जो है चेंजेस टू लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। स्किन सरफेस टू पाउडरी व्हेन टू टच, पाउडरी कंडीशन में हो जाती है। सॉल्युबल कंटेंट दैट इज 13 to 26% दैट इज सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, और एसिडिटी 0.2 से 0.3% तक हो जाती है, ठीक है। दैट इज टू क्राइटेरिया ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द हार्वेस्ट। आप देखो, अब हर फ्रूट का मैच्योरिटी इंडिसेस मैंने यहाँ पर दिया है। मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ द ट्रॉपिकल फ्रूट्स, क्या क्या हम करेंगे इसमें। जैसे बनाना है, बनाना देख रहे हो ना कितना क्लियर दिख रहा है, लेकिन आप उसके एंगल्स देख रहे हो, इसके बिल्कुल राइट एंगल में नहीं है, देखें इसके एंगल्स राउंडिश हो गए हैं, ठीक है ना। जितना जितना पकता जाता है उसमें एंगल खत्म होते चले जाते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइप ऑफ द फुल मैच्योर ऑफ द बनाना। तो यहाँ देख बनाना आपको मालूम है फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट फूड है क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज टू द वर्ल्ड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बनाना में एनुअल प्रोडक्शन इज 297.24 lakh ton and that is lakh tons, and the area is that is 8 lakh
and 3,000 hectares according to the data of the National Horticulture Board 2015. So there are the changes in the banana peel color and pulp texture during the rise in the respiration. इसमें भी respiration rise क्यों होता है? That is to they are classified under the climatic fruit. वो climatic fruit में रखा गया, ठीक है. जैसे ही full mature होगा, they generate the ethylene and to the starch convert into the carbohydrate. और धीरे धीरे जो स्टार्च होता है, कच्चा केला आप ऐसे नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा स्टार्च वैसा होता है, और दे हैव टू जनरेट एंड कार्बोहाइड्रेट जैसे ही इसमें आना शुरू हो जाएगा, मीठापन आएगा, आप खाना शुरू कर देंगे. द फ्रूट इज हार्वेस्टेड व्हेन द रिजेस समझ रहे हैं, ऊपर पे जो रिज होते हैं फ्रूट सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन चेंज फ्रॉम द एंगुलरिटी टू राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंगुलरिटी दे आर कन्वर्ट इनटू द राउंड इन शेप एंड आफ्टर द अटेनिंग ऑफ द 3% फुल स्टेज. Or the dwarf banana are ready for the harvest 11 to 14 months after the planting, when all the cultivar take about the 14 to 16 months of the harvest. Okay, so that is to the parameters. And drying of the top leaves, पूरी पत्तियों पर सूखना शुरू हो जाती हैं. Changes of the fruit surface from the green to light green and shading to the flower end and disappearance of the ridges on the surface to give a round shape to the fruit. तो यहाँ पर देख रहे हैं green है, green trace of yellow and to more green than to yellow. तो इसमें जो आप देख रहे हैं ग्रीन जो हम हार्वेस्ट करेंगे सेकंड स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेंगे, तो एंगुलरिटी दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द राउंडिश कंडीशन आफ्टर दे हैव टू द मोर ग्रीन देन टू द येलो. ये यहाँ पर देख रहे हैं फ्रूट का दैट टू मेच्योरिटी एंड डिस्क्रिप्शन. 70% फिंगर्स एंगुलर होती हैं एंड स्किन डार्क ग्रीन कलर का होता है बनाना के केस में. 80% मेच्योरिटी पे फिंगर्स स्लाइटली लेस एंगुलर होती है, स्किन डार्क ग्रीन होता है. 90% पे फिंगर्स टर्निंग टू बी द राउंड और डल ग्रीन कलर हो जाता है. और 100% फिंगर राउंड पर दैट अर्ली स्टॉप फ्रूट रनिंग एंड टू ग्रीनिश येलो कलर का. और मेच्योरिटी स्टेज में बनाना दे हैव टू द 3/4 लाइट फुल 3/4 एंड फुल 3/4 एंड फुल. दैट इज आप एंगुलर देख रहे हो, इसमें एंगुलर डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है. फुल स्टेज में क्या होता है, पूरा का पूरा बनाना ऐसा लग रहा है इसमें एंगल्स थे ही नहीं, बट इनिशियल स्टेज में एंगुलर इसमें होते हैं, फॉर्म होती है, ठीक है. Maturity indices banana में degree of the fullness of the finger, that is the disappearance of the angularity in the cross section, और skin pulp ratio बने is to 1.20 to 1.40 in the dwarf Cavendish के case में. Drying of the leaves is another parameter. Acid content ratio 0.25% हो जाता है. Days to the fruits and 90 days for the dwarf Cavendish. 90 दिन बाद dwarf Cavendish में फ्रूट मैच्योर हो जाता है. बनाना हार्वेस्ट मैच्योर ग्रीन रैपिड अकाउंट टू अराइवल एट द डिस्टेंस. अगर दूर भेजना है बनाना को, तो हम इसको कब किस स्टेज में करना हार्वेस्ट करेंगे, मैच्योर ग्रीन स्टेज में इसको हार्वेस्ट करेंगे, जिससे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये क्या होगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते राइपन हो जाएगा. आधा तो पक ही जाएगा और आधा बाद में कैल्शियम कार्बाइड लगा के पका लेते हैं फार्मर्स जो होते हैं ना, मार्केटर में मार्केट में बैठे होते हैं. दे कुछ ये हाँ, यहाँ पर हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक बनाना रोबस्टा का दिया हुआ है. तो इसमें स्टोरेज पीरियड डेज है. इथ्रिल इसमें जो इथाइलिन का सब्स्टिट्यूट है, तो जिसका हम प्रयोग करते हैं. तो पीपीएम में दिया गया है 0 to 50 ppm, 500 ppm, 1000 ppm है. तो फिजिकल लॉस इन द वेट यहाँ पर दिया रखे हैं, ठीक है. तो हम इसके रिसर्च का डाटा, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है कि इथाइलिन हम बढ़ाते जाते हैं तो कितना इथाइलिन बढ़ने पे इसका फिजिकल लॉसेस कितना कम ज़्यादा होता है, वो पैरामीटर्स दिया गया है. तो रेड कलर में 500 ppm पे सारे दिए गए हैं. 500 ppm पे वी हैव टू स्टोरेज पीरियड टू हैव टू द फिजिकल लॉसेस ऑन द वेट. तो 500 जैसे ppm बढ़ता जाएगा तो उससे वेट भी कम होता जाता है. ये उसका पैरामीटर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है. हम यहाँ देख लेते हैं देयर टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बनाना. ऑल ग्रीन से ग्रीन विद द ट्रेस ऑफ येलो है, मोर ग्रीन देन टू येलो है, मोर येलो देन ग्रीन है, येलो विद ए ट्रेस ऑफ ग्रीन है, ऑल येलो है, ऑल येलो विद द ब्राउन दैट इज स्पेकल्स हैं. तो मोस्टली क्या है, हम ग्रीन विद द ट्रेस ऑफ येलो पे हम हार्वेस्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, फुल मैच्योरिटी स्टेजेस पर. अगर फार्दर भेजना है आज तो ऑल ग्रीन पर भेजेंगे. तो जैसे 10 दिन हमारा ट्रेवलिंग में जा रहा था, 10 दिन में हमारा कन्वर्ट होकर मोर ग्रीन थर्ड और फोर्थ पे आ जाएगा. थर्ड पे पहुंचता है मोर ग्रीन देन द येलो पे, यहाँ पर पहुंच जाता है मार्केट में. इसके बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो दे हैव टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कलर चार्ट ऑफ द बनाना.
You have to changes of the physical characteristic of banana fruit and different stages maturity during the ripening at 20 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टेज 5 स्टेज 6 स्टेज 7 स्टेज पीछे दिया गया था ना। पल्प पील रेशियो 2 होता है, इसमें 6 में 2.3 और स्टेज 7 में 2.7 होता है पल्प पील का रेशियो। पील कलर में येलो विद ग्रीन टिप से स्टेज ऑफ रैपनिंग शुरू होती है, यानी दैट इज 5 स्टेज से रैपनिंग शुरू होती है। आल येलो 6 में और येलो स्लाइटली फ्लैप विद द ग्राउंड, ये 7 स्टेज में पहुंच जाता है। पल्प कलर में वाइट होता है, ग्रीन 5th स्टेज में, वाइटिश क्रीम और येलो क्रीम लास्ट में हो जाता है। और दैट इज टू पैरामीटर ऑफ दिस वन और द बनाना। Assessment of the banana fruit maturity by the imaging processing of techniques. Maturity stage to fresh banana fruit, it is two important factors that affect the fruit quality during the ripening and the marketability after the ripening. They are depend on the fruit. The orchard of the banana is farthest from the market or nearest from the market. Okay. With the ability of the identify maturity of the fresh banana fruit, it will be great support for the farmers of the optimized harvesting phase, or which help to the avoid the harvesting or the under mature or the mature banana. Okay, तो द स्टेजेस हैं, उस स्टेज के आधार पर ही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं बनाना को। तो आफ्टर दैट वी हैव टू सेंड टू द मार्केट, दैट इज टू नो फॉर अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ बनाना। ओके, ये देख रहे हो दैट टू द मीन वैल्यू डेज आप देख रहे हैं इनपुट बनाना एंड एक्सपेक्टेड बनाना दैट टू द डिफरेंट। ये रिसर्च के डाटा हैं, ये आपकी ज़्यादा मतलब के नहीं है। ये अंडर मैच्योर एंड दैट इज टू ओवर मैच्योर, देख रहे हो ना। 3 तरह का यहाँ पर ए बी सी तरह के दिया गया है। तो यहाँ एंगुलर देख लो, जो ए में एंगुलर ज़्यादा है, बी भी कम है, सी भी कम है। कलर भी चेंज किया गया हुआ है, ग्रीन से लाइट येलो में है। तो इनपुट इमेजेस इसमें ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। पपाया पाए जाते हैं, ठीक है। पपीता में आप देख रहे हैं, पपाया में टू you know the papaya carica papaya belong to the family Caricaceae. The papaya fruits contain about 85 to 90% of water, 10 to 30% sugars, 0.6% protein, vitamin A, vitamin B, C, and all have to found in the banana, वो papaya. So however, due to the inadequate facility for the post harvest, so handling, storage, processing, and preservation of the post harvest losses are the reported due to the around 30%. And to have to the post harvest physiological can be affected by the cultivar environmental condition and also by the harvesting time, or harvesting time also have to be influenced by the food sensorial quality. So that is to first information related to the papaya and to what is the percentage of water, sugar and to the protein. So after then to know how can you measure what is the maturity indices of the papaya. आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट प्लेट्स लगी हुई पपाया की। तो द फ्रूट रिक्वायर 125 to 140 days फॉर द फ्लावरिंग टू मेच्योरिटी। 125 से 140 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। और कलर द फ्रूट चेंजेस फ्रॉम द ग्रीन टू पेल ग्रीन और येलो ग्रीन, ठीक है। टू a portion of the fruit exposed to the sunlight become to dark yellow to in color, so the latex of the fruit become watery। सबसे बड़ा जो किसान ज़्यादा नहीं जानता होता, किसान कलर के आधार पर, और अगर ज़्यादा होशियार है तो इंसीजर करके ही पता लगा रहता है, दूध निकलना बंद हो गया तो मेच्योर हो गया, ठीक है ना। बाटरी बिकम बाटरी हो जाता है, तो दैट इज राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्ट। और टेस्ट्स एट द हार्वेस्ट शुड बी हैव टू मिनिमम दैट इज मिनिमम 6, और they have to change of the skin color to the dark green to the light green, or the papaya they have to usually harvested on the color that is 1/4 yellow of the fruit, or 1/2 or 1/3 yellow for the local market. TSS 7.11 that is 2 TSS of the papaya. A minimum soluble solids up to 11.5% is required for on that stage. तो हियर टू द ट्रायल लगा हुआ है पपाया का, करी का पपाया दैट इज टू कल्टीवार से हमारा डोल बन है इसमें, ये ना पीएच के आधार पर एंड टाइट्रेबल एसिडी एंड टीएसएस के आधार पर एंड डिफरेंट पैरामीटर्स लगाए गए हैं। तो ये रिसर्च के डाटा है, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैंगो के केस में आ जाते हैं। मैंगो में आप देख रहे हो, मैंगो ग्रीन टू येलो कलर में कन्वर्ट होता है। कुछ वैरायटी रेड कलर की भी हो जाती हैं, कुछ वायलेट कलर की हो जाती हैं। दी अगर मोर देन 1000 ऑफ वैरायटी इन मैंगो मैंगोफेरा इंडिका बिलोंग टू द फैमिली एनाफोर्डियेसी हैविंग द 40 ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, ये बॉटनिकली फ्रूट ग्रुप होता है, क्लाइमेटिक ग्रुप में रखा गया है, ट्रॉपिकल फ्रूट है और नीड फॉर इट कार्बाइड दैट इज CaC2 to for the ripening, the regeneration of the ethylene. तो मैंगो क्या है, मैंगो है द इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल फ्रूट्स आल्सो द फॉर द किंग ऑफ फ्रूट, ये नो वेरी वेल हैव टू द क्लासिफाइड it is to on the tropical zone. Tropical fruits है, climatic fruits है, that is grown in India. Almost states India है about 56% of the total mango production in the world. टोटल का 56% अकेला भारत पैदा करता है। और मैंगो क्लेम्स सुपीरियरिटी ऑन द फ्रूट, इट इज कंजप्शन ड्यू टू द हाई न्यूट्रिटिव एंड कमर्शियल वैल्यू। बहुत ज़्यादा विटामिन ए का अच्छी सोर्स है, 48 इसमें विटामिन ओ होता है, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड ऑल मिनरल्स दे आर फाउंड इन द मैंगो। ठीक है, so the mango is the seasonal fruit, maybe the fruiting come on the June, July, August, and the 3 months. Highly perishable fruit है, short shelf life, बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है। तो क्लाइमेटिक फ्रूट है टू रीजनरेट ऑफ द इथालियन रीजनरेट होता है। और क्वालिटी एज वेल एज टू द पोस्ट ऑफ लाइफ द फ्रूट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एंड हार्वेस्ट। ओके, तो अगर आपको सही जानकारी नहीं है, पहले प्री हार्वेस्ट हो जाएगा, दे हैव टू द मार्केटिंग वैल्यू इज फॉल डाउन, और ओवर मैच्योरिटी आल्सो हैव टू फॉल डाउन द मार्केटिंग वैल्यू। सो दे हैव टू दे पासिंग through the different stages of maturity and have to attaining the physiological maturity in the on the cases of mango. तो maturity indices में टपका स्टेज में हम इसको ये ग्रीन कलर से लाइट ग्रीन कलर पे इसको हम करते हैं, दैट इज टपका स्टेज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से 1.02 होती है अल्फांसो में, और लेस देन 1 फ्रॉम द दशहरी में 1 से कम होती है। एंड वाइट पाउडरी लाइक अपीयरेंस इन द स्किन ऑन मैच्योर फ्रूट, जब फुल मैच्योर हो जाएगा ऐसा लगेगा पाउडर किसी ने ऐसे मारा है ऊपर, पाउडर सा दिखाई देगा, लेकिन पाउडर होता नहीं, दैट इज द साइन ऑफ द मैच्योरिटी, साइन होता है मैच्योरिटी का। और चेंजेस इन द फ्रूट शेप, फुलनेस ऑफ द चेक्स और डेज टू द फ्रूट, दैट इज टू 110 to 125 डेज फॉर द अल्फांसो एंड पेरी फ्रूट्स में इतना टाइम लेता है। जनरली दे हैव 90 to 120 days to have to maturity of the fruits. So they have also changed in the skin color from dark green to light green or to yellow, that is in some cultivars, or red color in the skin of the some cultivars, not depending on the maturity indices. बहुत सारे फ्रूट इमेच्योर में भी कलर होते हैं, तो कलर के आधार पर यहाँ पर फील्ड मामला इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी मैंगो की वेरायटी हैं वो इमेच्योर कंडीशन में भी कलर्ड होती है। ठीक है, तोतापरी है, तोतापरी अलग से दिखाई देगा, ठीक है ना। रेड, बिल्कुल रेड वायलेट कलर के भी फ्रूट बाजार में है, तो जैसे दे आर ऑन इमेच्योर कंडीशन में भी कलर्ड होते हैं। तो फिर ये पैरामीटर नहीं समझ में आया तो आप बेस के आधार पर और TSS के आधार पर पता लगा लेंगे, दैट इज मैच्योर और नॉन मैच्योर, मैच्योर है कि नहीं है। तो 12 to 15% TSS हो तो समझ लो दैट इज टू मैच्योर। चेंज इन द फ्लैश कलर फ्रॉम द ग्रीनिश येलो टू द ऑरेंज, दैट इज टू इन द पैरामीटर्स ऑफ द मैंगो। यहाँ पर देख ले हो, दैट इज टू मैंगो फ्रूट हार्वेस्टिंग पीरियड इन इंडिया। महाराष्ट्र में अप्रैल से मई के बीच में हार्वेस्ट करते हैं, रत्नगिरी एरिया में, और अदर एरियाज में मई से जून के बीच में, गुजरात में मई से जून में, तमिलनाडु अप्रैल टू मई, आंध्र प्रदेश में अप्रैल टू मई, कर्नाटका में मई से जुलाई, बिहार उत्तर प्रदेश में जून अगस्त। ठीक है, जून जुलाई अगस्त इधर बिहार उत्तर प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और केरला में मार्च से अप्रैल। तो ये देखो फ्रूट एक ही है लेकिन राइपिंग टाइम डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है आपने जो नॉर्थ जोन में देखा जून अगस्त में पक रहा है वो यहाँ अप्रैल मई में पक रहा है महाराष्ट्र में, और मई जून में, और गुजरात में मई जून में पक रहा है, तमिलनाडु अप्रैल मई में पक रहा है। तो दे हैव ऑन द वेरिएशन ड्यू टू हैव टू द इंडिया इज द डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट द चेंज द टाइम ऑफ मंथ ऑफ हार्वेस्ट। दैट इज तो वेरी क्लियर, क्लियर होना चाहिए। सो दैट डेज ऑफ फ्रूट सेट TSS दिया है, the biochemical constituent during the different stages of development of mango, दैट सब पसंद में दे रखा है। ये हार्वेस्ट के बाद डेज आफ्टर द फ्रूट सेट, 20 डेज बाद TSS कितना होगा, 30 डेज बाद TSS कितना होगा, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज और 90 डेज बाद। तो यहाँ देख रहे हो तो TSS बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आल्सो इंक्रीज द टोटल शुगर्स बढ़ती चली जा रही है, रिड्यूसिंग शुगर्स आल्सो हैव टू इंक्रीज, एसिडिटी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो जब फ्रूट पकेगा तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगा और एसिड कम होगा। ठीक है, इमेच्योर कंडीशन में एसिड ज़्यादा होगा, मैच्योर कंडीशन में शुगर ज़्यादा होगा।
So that is the parameters of the biochemical constituent during the different stages of development of the mango. Okay. The average width, length, firmness, TSS, tetrable acidity and pH of the mango fruit यहाँ पर दे रखा है। Days after the harvest लिखा हुआ width, length, firmness, TSS, that is to tetrable acidity and pH। 50 दिन बाद देख रहे हैं वेट कितना है 20.71, ठीक है। वेट कितनी है 3.05, लेंथ ये सेंटीमीटर में डाटा है 5.68, लेंथ, फर्मनेस है ये दैट इज 5.35, ये kgf में है। TSS ब्रिक्स में 7.37 है, टेंटेबल एसिडिटी परसेंट में 3.79 और दैट pH 3.69। आप देख रहे हैं मैं 80 दिन पे जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है वेट बढ़ गया, विड्थ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, फर्मनेस बढ़ गया, TSS बढ़ गया, TSS कम हुआ, ब्रिक्स कम हुआ एंड दैट इज टेंटेबल एसिडिटी बढ़ी है और pH आल्सो दैट टू डिक्रीज, ठीक है। 110 दिन पे देख रहे हैं वेट बढ़ा है, width that to increase the length, firmness they are also the increase, they are TSS bricks बढ़ा है और tetrable acidity they have to decrease, एसिडिटी पकने पे बढ़ेगी घटेगी तो घटेगी, ठीक है ना, एसिड कम होगा तभी तो मिठास आएगा एंड pH आल्सो दैट टू 4.06। 140 दिन पे देख रहे हो वेट बढ़ा हुआ है, width बढ़ी हुई है, लेंथ आल्सो द इंक्रीज और फर्मनेस दे हैव टू डिक्रीज, ठीक है। TSS also the decrease and tetrable acidity also the decrease and pH also they have to decrease. So there the parameter increase at the maturity stages to the ripen acid they are to decrease and increase the fruit weight and width, length also they have to the increase. So that is the parameter on the basis of research. Research क्या है, कोई parameters है। आप देख रहे हैं 50 डेज, 80 डेज, 110 डेज एंड 140 डेज। तो एक फ्रूट वही है, बढ़ता जाता है एंड टू चेंज द कलर आल्सो। कलर देख रहे हो डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे जैसे लाइट ग्रीन होता जा रहा है क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जा रहा है, कैरोटीन कंटेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है दैट इज टू इंक्रीज, दैट इज टू गोइंग ऑन द रैपनिंग कंडीशन। यस, सपोटा के केस में आ जाते हैं। मैनिनकारा अकेरस जपोटा भी बोलते हैं, मैनिनकारा जेंड्रा भी है इसका नाम। बिलोंग टू द फैमिली सपोटेसी का है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सपोटा फ्रूट बाय मैक्सिको। एरिया अंडर द सपोटा इज एस्टिमेटेड 1.40 lakh हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन इन ईयर अबाउट 11.17 lakh टन। So the sapota fruit is to good sources of sugar, carbohydrate, protein, iron and ascorbic acid, ठीक है ना। So the fruit generally mature in about 240 to 270 days to need for its maturation after the flowering, and that is the parameter. So fruit is the full mature development and dull orange to potato color में convert हो जाता है। So that is to a mature fruit and to that is stretched slightly when the nails from yellow stacks instead of the green stick, ठीक है। So brown scaly material disappear from the fruit surface as to the fruit approaches full maturity. तो द मिल्क लेटेक्स कंटेंट इज रिड्यूस, इसमें भी लेटेक्स निकलता है, कच्चे पे में इसमें लेटेक्स निकलता है, जैसे पक जाता है तो लेटेक्स दैट इज टू रिड्यूस, लेटेक्स कम हो जाता है। द ड्राइड स्पंज लाइक स्टाइल टॉप ऑफ द फ्रूट फॉल डाउन एंड ड्रॉप ऑफ इजीली टू फ्रॉम द टचेस। So that is to maturity indices of the sapota fruit with 80% maturity, skin color change होता है इसमें 80% maturity पे, that is to brown with the tinge of the green to light brown to dark brown, और weight of the fruit is 65 to 70 ग्राम होता है। fresh yellow sticks then scratched with the fingernails। तो specific gravity 1.025 से 1.057 तक चली जाती है। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, अपीयरेंस, साइज, शेप, कलर, फ्रीडम दे हैव टू आल्सो दैट चेंजेस of this sapota। Firmness they have to firm ripe sapota to the preferred or that to flavor and related to the soluble solids content 13 to 26% तक होता है और acidity also that influence at the time of maturity 0.2 से 0.3%। आप देख रहे हो टू द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ रैपनिंग ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सपोटा। यहाँ पर देख रहे हो चार रैपनिंग स्टेज ली गई है, R1, R2, R3, R4। इसमें देख रहे हो वेट R1 में देख रहे हो वेट एंड द फ्रूट 94.22 ग्राम का है, R2 में 91 का हो गया, R3 में 84 रह गया और R4 में 60.68। वेट बढ़ता है और वेट दैट इज टू
width of the pulp, that is दिया है width of the skin। ये मतलब रिसर्च के डाटा, इससे आपको मतलब नहीं, आप ओनली फुल नो अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। तो यहाँ पर कलर में देख रहे हैं येलोइश टू ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है। तो दे हैव टू डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। ओके, ये सब रिसर्च के डाटा है, इससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है। कंक्लूजन में देख सकते हो ओवरऑल जो फूड का कंक्लूजन है, बनाना में फिजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस, 2 पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बनाना में एंगुलरिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, पकने पर। दे हैव टू गोइंग ऑन द मैच्योरिटी, जैसे ही तगड़ा होता था वो उसका जो एंगुलरिटी खत्म हो जाती है। राउंड शेप द फूड इंक्रीज और कलर चेंजेस फ्रॉम द डार्क ग्रीन टू द येलोइश ग्रीन इन द केस ऑफ बनाना। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या होता है, पल्प फिल रेशियो, पेक्टिन कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट एंड टाइट्रेटिव एसिडिटी इज द इंक्रीज इन द बायोकेमिकल चेंजेस इन बनाना। पपाया के केस में वो कलर चेंजेस फ्रॉम द ग्रीन टू द येलोइश ग्रीन हो जाता है। टोटल शुगर, टोटल फिनोल्स इन द फ्लैश, टोटल फिनोल इन द स्किन इंक्रीज इन द रिड्यूसिंग शुगर डिक्रीज। मैंगो के केस में क्या होता है, इंक्रीज इन द वेट, विड्थ, लेंथ, फर्मनेस, चेंजेस इन द फूड कलर, ठीक है। और इन बायोकेमिकल चेंजेस में क्या होता है, इंक्रीज द टोटल शुगर, TSH, डिक्रीज इन द एसिडिटी। पैरामीटर जो बहुत क्लियर है। सपोटा के केस में क्या होता है, डिक्रीज इन द वेट ऑफ द फूड, वेट ऑफ द स्किन, वेट ऑफ द पल्प, वेट ऑफ द सीड, वॉल्यूम ऑफ द फूड, लेंथ ऑफ द फूड, डायमीटर ऑफ द फूड एंड डिसअपियरेंस ऑफ द पाउडर सरफेस। सपोटा के केस में पल्प सीड रेशियो, decrease in the ascorbic acid and moisture content. They are the sub conclusion of the parameter physical changes and chemical changes. The future thrust में क्या है इनका फ्यूचर है भाई, to need for the strengthen the research work on the maturity indices of the food crop to improve in nutritional quality, marketing value and adequate shelf life of the food, ठीक है। और to create awareness among the procedure for the maturity indices of the various food crops. So they are the some future thrust of the maturity indices. So thank you for all. Related to any question, कोई आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं, any doubt for this one, आप पूछ सकते हैं। Any questions related to that? कोई कुछ आप पूछना है आपको? मैच्योरिटी इंडेक्सेस में राइट स्टेज ऑफ द हार्वेस्ट, मैच्योरिटी इंडेक्स का मतलब राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्ट, कैसे पता लगाएंगे कि राइट स्टेज है या नहीं, इसके लिए पैरामीटर्स आपको मैंने बताए, ठीक है। पैरामीटर्स है तो द नन फॉर द सम साइंस, कुछ साइंस हैं, जैसे बनाना के केस में क्या साइन है कि एंगुलरिटी कम हो जाती है, ठीक है, राउंडेस हो जाती है फिंगर, ग्रीन स्टेज में एंगुलर होती है, पकने जब मैच्योरिटी स्टेज पे आती है राउंडेस हो जाती है, ये पायर बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो बिल्कुल गोल हो जाता है बनाना, लेके जाते हो ना। और कच्चा बनाना भी देखा, पक्का भी देखा, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टनेस आ जाती है, सॉफ्टनेस ड्यू टू हैव टू डिकम्पोज द स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज टू सिंबल ऑफ द मैच्योरेशन। एनी क्वेश्चन, और कुछ बताएं आप, मेरे को पूछना है कुछ? तो ये आपके इसमें एक आपको एक मैच्योरिटी इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताया कि इसमें आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट कब तोड़ना चाहिए। पहले तोड़ लेंगे तो उसकी मार्केटिंग वैल्यू, उसका क्वालिटी, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टर सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। राइट स्टेज पे तोड़ेंगे तो उसका फ्लेवर, कलर सब मिलेगा। ओवर मैच्योरिटी पे भी ये सारे आर्बन हैव टू नॉट डिफेक्टेड, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है आपको? अटेंडेंस में आपकी ले लूँ, मैंने अभी नाम आपको लिखे नहीं है किसी के भी। रीतिका है इसमें एक, रीतिका, प्रियंक है, विक्रम और नवीन। यस सर। नवीन के बाद किंसुक है। यस सर। आज मैं अटेंडेंस बना लूंगा। अखलाक है यहाँ पर। यस सर, अखलाक है सर। हेलो क्या तपस्या है? सर अखलाक इज प्रेजेंट। और इसका मधु है। और कोई है इसके बाद मधु के अलावा? नाम बोल दीजिए अपना, नाम बोलिए। बोलो, नाम बोलो। सर अखलाक नाम राजी के। इसका अटेंडेंस का कहीं ऑप्शन नहीं आता है ना, देखता हूँ। क्या राहुल,
इसमें हम डायरेक्ट अटेंडेंस नहीं इनके जैसे हम उसमें एमएस उस पर डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर नहीं है, नहीं हो सकता। तो नाम बता दो आप लोग, ठीक है ना। और कोई बचा है इसके अलावा जो प्रेजेंट है? पूजा है और बताइए और कौन कौन है? अटेंडेंस का ऑप्शन होना चाहिए। कॉपी ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन है नहीं इसमें। हाथ उठाइए, राइज करिए हाथ। चलिए, जिनका अटेंडेंस नहीं है वो हमें बता दें। अखलाक है, अखलाक का लगा लिया मैंने, अखलाक का। सर रितिका। विक्रम शेरावत, विक्रम का लगा दिया। और बताएं, नया कोई है जिसका नहीं लगा अटेंडेंस? ठीक है, ओके, तो अटेंडेंस में आपका ले लिया हूँ।